ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। আজ এই সুন্দর সকাল আমাদের দিয়েছে পরমেশ্বর, তাই আজ আমরা আসুন কিছু ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এবং প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা যে আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা যে সেই ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করার মতো হৃদয় আমাদের কাছে নেই, সেই বিশ্বাস ভরসা আমাদের প্রতি নেই, কারণ আমরা কনফিউজ থেকে যাই মাঝে মাঝে, যেটা কি সত্য, এটা কি সত্য। আর আমরা বিভিন্ন রকম নিয়মকানুনের মধ্যে ঢুকে পড়ি, বিভিন্ন রকম বিধানের যে পালন, সেই পালনের মধ্যে আমরা প্রবেশ করে পড়ি, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করার মতো হৃদয় আমাদের নেই, কারণ আমরা ঈশ্বরের হৃদয়ের সাথে আমাদের হৃদয় একত্রিত হতে পারে না। তাই আজ আপনাদের কাছে আমি হাত ধরে করে রিকোয়েস্ট করছি, শুধু বচনকে গ্রহণ করুন। বচন ঠিক যেভাবে দিয়েছে সেইভাবে গ্রহণ করুন, তাতে ঈশ্বর খুশি হন। আপনার নিজস্ব জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি এটাকে ইউটিলাইজ করবেন না। আসুন আজ আমরা সেই ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করব। আসুন আমি হিন্দিতেই বলি, কেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে, আর সে বাংলায় বলবে, আমি আপনাকে হিন্দিতে ট্রান্সলেট করে দেবো। আসুন, পর ইপিসিও 2:8 থেকে 10, ইপিসিও 2:8, বড় করে বড়ই করা আছে। আচ্ছা, কারণ বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহ দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ লাভ করেছো। ব্যাস ওইটুখানি। বিশ্বাসের মাধ্যমে, দেখুন কি বলছে, ফার্স্ট পয়েন্টে আপনি যদি দেখেন, এখানে দুটো পয়েন্টের উল্লেখ করা হয়েছে। এক হচ্ছে আপনার বিশ্বাস, আর দ্বিতীয়টা বিশ্বাসের অনুগ্রহ অনুগ্রহ। আপনার দুটো পয়েন্ট এখানে আছে, একটা হচ্ছে বিশ্বাস আর দ্বিতীয় কি বললে, অনুগ্রহ। তাহলে আপনাকে যে কোনো জিনিসের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্য, এটা রামদাস, তুলসীদাস, মানস সরোবর এরা কেউ বলেনি। কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রী নয়, কোনো রাষ্ট্রের নেতা নয়, বা আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বি নয়, আমেরিকা ফরাসি যে কোনো আপনি দেশ বলুন, তাদের কোনো নেতা মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট বি নয়। এটা হচ্ছে আপনার ঈশ্বর বলছেন, ঈশ্বরের বাক্য। ঈশ্বর মানুষের উপর যে আশীর্বাদ অনুগ্রহ দিয়েছেন, এবং ইফিসীয় মণ্ডলীকে আমাদের পৌলুস যে 13টা লেটার পাঠিয়েছিলেন, সেই পৌলুস ইফিসীয় মণ্ডলীকে সেটা আপনার বলছে এটাই, যে বিশ্বাস, আমরা প্রথমেই বিশ্বাস করি না, ঈশ্বরের বাক্যকে উল্লঙ্ঘন করি, এটা হচ্ছে প্রথম পাপ। আপনি যদি বাইবেল যদি দেখেন, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ঈশ্বরের বাক্যকে উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে পাপ। পাপ বলতে এটাই বাইবেল ভিত্তিক, কিন্তু আপনাদের ভিত্তিক আপনাদের নিজস্ব একটা চিন্তা ভাবনা, ধার্মিক বুদ্ধি, অনেক কিছু ব্যাপার আছে, সেসব ডিটেলস যাবো না, অনেক ভিডিওটা লং হয়ে যাবে। তাহলে এখানে কী বলছে, ফার্স্ট হলো আপনার বিশ্বাস, আপনি ঈশ্বর যেটা বলছে সেটাকে গ্রহণ করুন, এটাই, আর কিচ্ছু দরকার নেই, শুধু সেটুকু গ্রহণ করুন। আর ঈশ্বর আপনাকে গ্রহণ করলে কী করবে, অনুগ্রহ দেবে, সেই অনুগ্রহে আপনি পরিত্রাণ লাভ করতে পারেন। দ্বিতীয় কোনো রাস্তা আপনার পাখে কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই। হিন্দিতে বলার কথা না, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हिंदी तो अपना डिस्कस करा था। पहले क्या है, विश्वास। आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा, जी हाँ ये ईश्वर का वचन है। दूसरा कोई मानस सरोवर है, व तुलसीदास, रामदास, संध्याकर नंदी, बहुत बड़ा बड़ा राइटर है, कोई स्टेट का व कोई कंट्री का प्रेसिडेंट, नेता, मंत्री कोई नहीं है। ये डायरेक्ट स्तर इफिसियो मंडली में आपका पौलुस के द्वारा ये बात कर रहा है, जो तुमको हमारा वचन को विश्वास करना पड़ेगा, और जो विश्वास करेंगे हम उसको अनुग्रह करेंगे, और अनुग्रह करेंगे तो आपको परित्राण मिलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप पहाड़ में चढ़ जाइए, नदी में डुबकी लगाइए, बा 2-4 आदमी को खाना खिलाइए, कपड़ा दीजिए, कोई दान ध्यान कीजिए, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि यीशु के पास एक लड़का आया था, वो पूछा जब हमको अनंत जीवन पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। वो बोला, यीशु बोला था सबको दान ध्यान ये सब बोला था, लास्ट में वो बोला हम सब कुछ किया, हम दान दान करना, गरीबों को खिलाना, उपवास करना, प्रार्थना करना, ये सब छोटा से कर रहा हूँ, छोटा से वो लड़का। लेकिन लास्ट में यीशु के क्या आंसर दिया, ये सबको तू बेच डाल, बेच के गरीबों को दान करके हमारा पीछे चले।
लेकिन वो दुखित हो गया। क्योंकि दुखित हो गया, वो उसको छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग जो दिखते हैं ना वो उसको हम विश्वास करता हूँ। प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पर है, जो दिखते हैं उसको विश्वास करते हैं, जो नहीं दिख रहा है उसको हम लोग विश्वास नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो जो नहीं दिखता है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। आपको द्वितीय करंथियो 4 का 18 बार करो। द्वितीय करंथियो হুম। 4:18 পড়ো। তাই কোনো দৃশ্যমান বস্তুর দিকে নয়, কিন্তু যা অদৃশ্য তার প্রতি আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। তাহলে क्या बोले यहाँ पर, কোনো দৃশ্যমান বস্তুর দিকে নয়, अर्थात आपको जो दिख रहा है ना उसको आप डिपेंड मत कीजिए कि जो आपका शैतान उसको दिखाता है। आपका जो शैतान है ना उसको दिखाता है, जहाँ ऐसी करने से तुमको परित्राण मिलेगा। तुम 5,000, 10,000, 20,000, 20,000 लोग को दान करो, खिलाओ, कपड़ा दो, वस्त्र दो, रहने के लिए जगह दो। हाँ, सब कुछ अच्छा काम है, अच्छा काम बुरा नहीं है, काम अच्छा है, लेकिन आपको क्या मिलना चाहिए? परित्राण मोक्ष, जिसको हिंदी में बोल रहा है मोक्ष मिलना, वो एकमात्र परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आपका हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। एवं परमेश्वर को आपको विश्वास करने से आपको अनुग्रह मिलेगा, और वो अनुग्रह के आप मिलेगा, परित्राण मिलेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपका यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। इफिसियों 2:9, इफिसियों 2:9। তা কর্মের ফল নয় যে তা নিয়ে কেউ গর্ববোধ করবে। आपका कोई कर्म नहीं है उसमें। आपको जो परित्राण मिलता है उसमें आपको कोई कर्म नहीं है। क्योंकि अनुग्रह किसको बोलता है ये पहले आपको जानना पड़ेगा। अनुग्रह है वही चीज जो आपको बिना कर्मों के द्वारा मिलता है, बिना कर्मों के द्वारा। आप घर का कुछ काम कर रहा है, उसको जो रिजल्ट आपको मिल रहा है वो आपको कर्मों का फल है। आप कहाँ पर जॉब कर रहा है, उसके लिए आपको जो सैलरी, वेतन जो मिल रहा है वो आपको परिश्रम का फल है। क्योंकि आप वो कंपनी का एक वर्कर है, एक कंपनी का आपको एम्प्लॉय है। आपको उसी कंपनी में जब जॉब करता है उसी जॉब के हिसाब में आपको सैलरी, वेतन, दूसरा जो भी का आप बोल सकते हैं, वो आपको पारिश्रमिक का फल है। आप जो परिश्रम कर रहा है और परिश्रम का फल आपका उसमें है। लेकिन अनुग्रह दूसरा है, बिना कर्मों के द्वारा जो आपको मिलता है उसका अनुग्रह बोलता है, बिना कर्मों के द्वारा। इसलिए बोल रहा है ये कोनो कर्मेर फल नय जो आपने अब गर्व, अहंकार, जहाँ प्राउड करना है, ये आपको प्राउड करने का कोई पैसेज आपके पास नहीं है। उसके बाद কারণ আমরা ঈশ্বরের রচনা, সৎকর্ম করার জন্য খ্রিস্ট যিশুতে সৃষ্ট। क्या बोल रहा है? हम लोग क्या है? ईश्वर का रचना। हाँ बोलो, ईश्वर का, बोलो। हाँ, हम लोग ईश्वर का रचना, जो ईश्वर हम लोग को सृष्टि किया है, उसके लिए हम लोग जो सत्कर्म जो करते हूँ वो यीशु ख्रिस्ट से हम लोग को सृष्टि। अर्थात यीशु जो काम कर रहा है उसी काम पे हमको लगे रहना है। जो आप देखेंगे यीशु जो बोला था, मेनली उसका जो आज्ञा था सुसमाचार प्रचार, वो एक कर्म है सुसमाचार के लिए। वही आपको सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है? যা তিনি পূর্ব থেকে আমাদের করার জন্য প্রস্তুত করিয়েছিলেন। पूर्व थे माने पहले से हम लोग को जो काम है वो पहले से हम लोग प्रस्तुत करके रखा है। तो हम लोग ईश्वर से हम लोग ये है सृष्टि तो पहले रचना हो गया है, हम क्या करेंगे और नहीं करेंगे। तो हम अभी नहीं सोचना चाहिए जो हम जो कर रहे कर्म से हम लोग कर रहे हो, जो हम कर्म से कर रहे, जो अभी जो काम कर रहे हो, जो ईश्वर का जो काम, ईश्वर पहले हम लोग को मनोनीत कर लिया है। इसलिए हम लोग
पहले से जो आदमी जो हम लोग करते हो वो पहले से ईश्वर हम लोग को लिए करके रख दिया जो तुम लोग काटना है। तो इसीलिए हम लोग को ये पूर्वे से हम लोग को करके रख दो। ये लोग हम लोग को क्या बोलते हैं एक्चुअली बात यही है जे हम लोग सोचता हूँ जो यीशु क्रिस्टो मिडिल में आया काम किया वह हमारे लिए कुछ किया नहीं। ईश्वर ईसा योजना का योजना था, प्लानिंग था, परिकल्पना था, आप जो भी बोल सकते हैं, ये पहले से कर दिया था। आप जो देखेंगे इफिसियो 1 का इफिसियो 1 का 4 কারণ জগৎ সৃষ্টির পূর্বে তিনি তিনি আমাদের মনোনীত করেছিলেন। अर्थात जगत सृष्टि नहीं हुआ, उसको पहले से हम लोग को मनोनीत प्लानिंग किया है। आप ये मत सोचिए क्योंकि हम लोग जिसके पास सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता हूँ सब जो एक्सेप्ट करेंगे नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। आप 10 घर में गया है तो 2 आदमी आपको एक्सेप्ट किया है, 5 आदमी आपने रिजेक्ट निकाल दिया है, आपको तुच्छ ज्ञान किया है। ये बाइबल में लिखा है, आपको यहाँ पर दुख करने का कोई जरूरत नहीं है। सुसमाचार का यही काम है। आप साल में एक बार पाम संडे, एक दिन ईस्टर डे, एक बार ख्रिस्ट का जन्मदिन, एक ही आपका विधान पालन कर रहा है। ये दूसरा कुछ काम नहीं है। विधान पालन करके आप कभी धार्मिक नहीं बन पाएगा, ये आपको हिसाब में नहीं है। क्योंकि आप विधान पालन करेंगे तो आपको यीशु का अनुग्रह से आपको क्या हो जाएगा, गिर जाएगी। पहले आपको दिमाग में रखिए, क्योंकि साल में जो हमारा फेस्टिवल नहीं है, आप ख्रिस्टो का क्यों फेस्टिवल बना रहा है? आपको सुसमाचार प्रचार करना है तो 365 डेज कीजिए। जब ख्रिस्टो हमको लिए मरा है और उसके साथ हम जीवित हुआ हूँ, ख्रिस्टो हमारे लिए आपका प्राण उत्सर्ग किया है, उसका अपना लहू झड़ा है। ये 365 डेज आपको करना है। आप एक दिन पाम संडे करके थोड़ा सा रैली कर देंगे 10-15 मिनट का, अरे ख्रिस्टो का बहुत काम किया ये सब आपका विधान के अंदर चला जा रहा है। आप जो हर साल में ख्रिस्टो का जन्मदिन मना रहा है 25 दिसंबर, आपको मालूम है 25 दिसंबर का जन्मदिन है कि नहीं है? तो जो मालूम नहीं है, जो परफेक्ट नहीं है, अपना क्यों दिमाग उसमें घुसा रहा है? जो इसी दिन में ख्रिस्टो जन्म किया था, इसी दिन में ख्रिस्टो आया था, इसी दिन में आपको ऐसा हुआ था, वो अपना हिसाब में लगा रहा है ना। आप क्यों अपना दिमाग, क्यों अपना सोच आपको लगा रहा है? क्योंकि ये जो यूज करता है उसको बाइबल क्या बोल रहा है, वो दुष्ट है। मैं नहीं बोला, दुष्ट है। जिसया 55 का 7, 95 का 7 बोल रहा है, जो आपका खुद का चिंता से आपका वजह से चल रहा है वो दुष्ट व्यक्ति है। तो हमको मालूम नहीं है जो चीज, हम क्यों अपना दिमाग से, आज सारा विश्व उसी हिस्से में चल रहा है। हम लूसीफर को जायगा दे रहा हूँ, हम लूसीफर को जायगा दे रहा हूँ, हम नरक के जाने के लिए, नरक में जाने के लिए हम लोग खुद लड़ाई कर रहा हूँ। ये ख्रिस्टो का इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि इफिसियो 4 का 27 क्या बोल रहा है? इफिसियो 4 का 27 एक नहीं दो, दियाबल के प्रश्रय दियो ना। यहाँ पर क्या बोला? दियाबल को प्रश्रय मत दो। लेकिन हम लोग खुद दियाबल को, पूरा सारा विश्व में हो रहा है। आज जिसु रो रहा है, क्यों रो रहा है? हमारा काम के लिए, हमारा काम के लिए। तो आपको बार बार बोल रहा हूँ, विधान से हट जाइए, क्योंकि विधान पालन करके कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपको यदि यीशु का सुसमाचार प्रचार करना है, कुछ करना है, 365 डेज कीजिए। संडे 10 मिनट करके चर्च में आके कोई धर्म कर्म नहीं बनता है। आप 5 आदमी को खिला दीजिए, 10 आदमी को खिला दीजिए, उसमें कुछ नहीं हो पाता है। आप किसी को दान कीजिए, उसमें कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक रूल्स रेगुलेशन, एक ट्रेडिशनल, और ट्रेडिशन के लिए कोई परिवर्तन नहीं मिलता है, परिवर्तन नहीं मिलता है। आपको गलातियो 5 का 4 देखो तो, 5 4 गलातियो
गलत ये 5 4। তোমরা যারা বিধানের দ্বারা নির্দোষ প্রতিপন্ন হতে চাইছো তা খ্রিস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছো। समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? जो लोग विधान पालन करता है, जो लोग विधान पालन करता है, जो लोग তোমরা যারা বিধানের দ্বারা নির্দেশ প্রতিপন্ন হয়েছে তারা খ্রিস্ট থেকে বিচ্ছিন্ন। अर्थात आप जो सब रैली वैली कर रहे हैं, आप लोग पूरा ख्रिस्ट से पूरा तुच्छ हो गया, पूरा गिर गया, पूरा गिर गया 100%। एक रास्ता नरक का रास्ता है। हम लोग को जो सोच है, हम लोग को जो ये है वो अच्छा है, बहुत स्मूथ है, बहुत आपको दिखता है, लेकिन वो क्या कहाँ पर जा रहा है? हमारा मृत्यु के लिए, हमारा मृत्यु के लिए ये जा रहा है। आपको बोल देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। गीत संहिता गीत संहिता বার করো। কত নাম্বার বলো না? বলছি সংহিতা যা করে রাখুন জানি। अरे एमनी मुखे बोलो ना। गीत संहिता में आपको एक पौध है जहाँ पर बोल रहा है, वो रास्ता तो अच्छा दिखाता है, आपको बहुत मसृण रास्ता दिखाता है किंतु उसका लास्ट अंत तक है क्या? मृत्यु। उसका लास्ट अंत तक है उसका मृत्यु। आटा से नहीं, आटा से नहीं। अच्छा ठीक है। गीत संहिता एक पथ है जिसमें आपको उल्लेख किया है जे आपको रास्ता तो बहुत मसृण दिखता है, लेकिन वो लास्ट में जहाँ पर खत्म होता है वहाँ पर आपका मृत्यु है। देखिए, आपको विधान पालन करके विधान का जो वादा है, मैं आपको यहाँ पर 2-3 ये देंगे। लेवियो वार पुस्तक बार करो, लेवियो पुस्तक 4:2। সদাও তুমি তুমি ইসরায়েলের বলো, কেউ অনিচ্ছাকৃত পাপ করে এবং সদাও আদেশ সময়ে যে কোনো নির্দিষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করে। দেখেন এখানে পাপ পাপ किसको बोल रहा है? पढ़ो और पढ़ो। তুমি ইসরায়েলদের বলো কেউ অনিচ্ছাকৃত পাপ করে এবং সদাবাবুর আদেশ সমূহে যে কোনো নির্দিষ্ট आदेश लंघन करे, निषिद्ध आदेश लंघन करे। তাহলে এখানে পাপ आपको क्या बोल रहा है? जो अनिच्छित सदाबहू को जो आदेश था आप उसको लंघन किया है। आपको 2-4 वाक्य देंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली पाप है क्या, पाप है क्या। कोई निषिद्ध माने सदाबहू आपको उसको मना किया है, टोटली आपको मना किया है, ये काम मत करो, वो काम मत करो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपना दिमाग के ऊपर वो काम कर रहा है। आपका दिमाग सोच लग रहा है, अपना दिमाग, अपना सोच, अपना चिंता भावना, अपना रास्ता, ये जो है ये सब दुष्ट का है, सब दुष्ट का है। और आपको अच्छा चिंता देता है, बुरा चिंता कभी नहीं देगा शैतान। आपको हर टाइम में अच्छा चिंता देगा, अच्छा बात आपके साथ करेंगे। जैसे आप उसको उसमें आपको खराब कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ खराब नहीं देगा, अच्छा देगा आपको।
দুয়ে তিন, তাও তিনটা, তিন। তিনটা। হুম, যদি অভিষিক্ত যাজক পাপ করে লোকদের উপর দোষ বর্তায়, তাহলে তার কৃত পাপের জন্য সদাউর উদ্দেশ্যে পাপত্ব বলি ত্রুটিহীন গোবৎস উৎসর্গ করবে। হুম। এখানে क्या बोला যদি देखिए? যাজক পাপ করে, অভিষিক্ত যাজক পাপ हाँ, করে, माने आपको जिसको अभिषिक्त तो किया है, निर्वाचन सिलेक्टेड, वो यदि करेंगे उसको क्या करना पड़ेगा? তো এটা লোকদের উপর দোষ বর্তায়, তাহলে তার কৃত পাপের জন্য, মানে वो लोग जो पाप किया, पाप का मतलब यही है ईश्वर आदेश को उल्लंघन करना। पाप का बलि रूप में बलि उस टाइम में जो सिस्टम था, एक गो वस्तु लाना पड़ेगा তার এবং ত্রুটিহীন, মানে তার কিছু দেহরে কিছু কিছু রইবে না, কিছু त्रुटिहीन। समझ गए आपने? 4 का 13, 13 पद। হুম। যদি সমগ্র যদি সমগ্র ইসরায়েল সমাজ ইচ্ছাকৃত পাপ করে ও সদবুর আদেশ সমূহে যে কোনো নিষিদ্ধ তো নিষিদ্ধ, নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ আদেশ লঙ্ঘন করে, এমনকি বিষয়টি সমাজের অজানা থাকলেও তারা দোষী সাব্যস্ত হবে। বলো। হুম, পড়ো আরো পড়ো। যদি সমগ্র ইসরায়েল ইসরায়েল সমাজ, ইচ্ছাকৃত সমাজ পাপ করে, माने समझ बोलते आप समझ रहे हैं, जब एक जगह में बहुत आदमी इकट्ठा होता है, माने इकट्ठा मतलब क्या? एक साथ बसवास कर रहा है, एक ही गोष्ठी का होगा, एक ही गोष्ठी का, हजार गोष्ठी का नहीं, एक ही गोष्ठी का। जब बहुत फैमिली, बहुत परिवार एक ही जाएगा में वो लोग बसवास करता है, उसको समाज बोलता है। तो एक इसराइल समाज था, टोटल इसराइल था, जो इच्छा की तो पाप करे, अर्थात एक अनिच्छाकृत हो गया, एक इच्छाकृत हो हिंदी गया। बोल हिंदी बोल। दो टाइप का है, एक इच्छाकृत माने आपका इच्छा अनुसार में हो रहा है, और अनिच्छित माने आपको मालूम नहीं था, अनिच्छाकृत इसको बोलता है। उसको भी जो पाप करेंगे, अर्थात पाप कोई एक ही चीज है, जो ईश्वर का आदेश को उल्लंघन करना। ईश्वर आदेश को उल्लंघन करना समाज अजाना থাকলেও তারা দোষী সাব্যস্ত হবে। क्या बोल रहा है? समाज का अजाना, आपको मालूम नहीं है जे ये करना जाना पाप है, नहीं है। वो करना पाप है, क्योंकि हम लोग पहले जब था मालूम था, अरे मुझे मालूम नहीं था, हो गलती हो गया, हम क्या करेंगे, अभी मालूम हो गया, अब नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल क्या बोल रहा है? आपको मालूम नहीं होने से भी पाप ये है। आपके लिए पाप है। समझ रहे हैं? पहले हम लोग इसे पाप एक ही चीज है, जो आपको बार बार बोल रहा हूँ, ईश्वर का वाक्यों को उल्लंघन करना। वो जो आपको निषिद्ध किया है, जो मना किया है, उसके लिए अगेंस्ट में आप जो काम कर रहे हैं, वही आपका पाप है। आप अपना दिमाग में बहुत कुछ सोचते हैं, वो लड़के ऐसा छोटा छोटा जामा पहनता है, खराब चीज है। वो ऐसा करता है, जीन्स पहनता है, ये भी खराब है। हाँ, वो लोग ऐसा कर रहा है, आपका दिमाग का काम करता है, हाँ ठीक है, अच्छा ऐसे ऐसा, क्योंकि ये हम लोग को एक चिंता भावना के अंदर में हम लोग रखा हूँ, हम लोग का दिमाग में रखा हूँ, जो इससे होगा तो ये होगा, ये होगा तो वो होगा, इसी से रहेंगे तो ऐसा होगा। ये बहुत कुछ आपको आप लोगों का अंदर स्टैटिस्टिक का हिसाब आप लोग सोच के रखा है, ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा, क्योंकि ये हमारा कैलकुलेशन है, हमारे लॉजिक है, ये ईश्वर का नहीं है। और हमारा जो है अंदर से जो निकलता है वो दुष्ट का काम कर रहा है, क्योंकि हमारा अंतर बुराई सोचता है। आदि पुस्तक 5 का 6 यदि आप वहाँ पर देखेंगे, वहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हमारा अंदर से जो निकलता है ना, हमारा अंदर बुरा निकलता है, क्योंकि हमारा अंदर बुरा सोच है, हमारा अंतर मंदो है, हमारा अंतर मंदो, इसलिए मंदो ही निकलता है, अच्छा चीज कभी नहीं निकलेगा। आप मार्क का 7 के 21 देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर यीशु क्या बोल रहा है? बाहर में कोई अशुचि वस्तु नहीं है कि, लेकिन हमारा अंदर से जो निकलता है वो अशुचि हमको कर देता है। कुचिंता, कुभावना, कु पद में जाना, वो हमारा अंदर से निकलता है, हमारा भीतर से, लेकिन वो हमको अशुचि करता है। बाहर का कोई वस्तु हमको अशुचि नहीं करता। ये पहले आपको दिमाग रखना पड़ेगा। 4:22 4:22 हाँ हाँ, लेवियो
যখন কোনো নেতা অনিচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে ও তার ঈশ্বরের সদয় আদেশসমূহে কোনো কোনো নির্দিষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করে, সে তখন তার অপরাধ বুঝতে পারবে। पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है? যখন कोई नेता माने अर्थात कोई हेड हेड, हेड आपका लीडर, अब जिसको बोल रहा है, कोई भी लीडर, हमारा लीडर भी हो सकता है, आपका भी लीडर हो सकता है, कोई स्टेट, कोई कंट्री, कोई भी लीडर, जब वो लीडर क्या करता है, अनैच्छिक पाप माने माने जो उसको इच्छा नहीं था, जो उसको इच्छा नहीं था लेकिन वो कर बसे अनैच्छिक पाप লঙ্ঘন এবং তার করে। ঈশ্বরের আদেশ সমূহের কোনো নিশ্চিত निश्चित आदेश आदेश लंघन। लंघन करा। आपको बार बार बोल रहा हूँ, ईश्वर आदेश को उल्लंघन करा ये पाप है, क्योंकि हम लोग के अंदर जो बुरा सोच है वो जब निकल जाता है ना, वो हमारा कुछ चिंता, आपको बोल रहा है असूचि, हमको असूचि कर देता है। हमारा इच्छा नहीं था लेकिन वो ऑटोमेटिक होता है, हो जाता है। आप यदि रोमियो देखेंगे, वहाँ पर भी 7 का 18 से 20 तक वहाँ पर भी एक ही लिखा है, क्योंकि हमको अच्छा काम करने की इच्छा है लेकिन हम कर नहीं पाते, लेकिन जो बुरा काम है वो हम करने की इच्छा नहीं है लेकिन हम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो बैठा है, हमारे अंदर वो बैठा है, वही हमको कराता है, क्योंकि हमारे अंदर में कोई अच्छा चीज नहीं है, कुछ अच्छा चीज नहीं है जहाँ हम कुछ अच्छा काम करें, अच्छा सोचे, अच्छा रास्ता में चले, अच्छा कुछ कर पाएंगे, वो हमारा नहीं है। लेकिन हमारा एक ही काम है, जिसको सपोर्ट करना, वो जो बोल रहा है उसको आदेश को शुद्ध एक्सेप्ट करना, और वो जैसे बोल रहा है वैसे ही चलना। क्योंकि हम लोग जो पहले था, हम देखा हूँ जे वैसा मैं बहुत पास्टरों को दिखा हूँ, पास्टर बोलिए, बिशप बोलिए, रेवरेंट बोलिए, और अभी जो हम लोग पास्टरों के साथ आप लोग काम कर रहा हूँ उसका लाइफ टोटल अलग है। आप यदि पौलुस का लाइफ कहीं नहीं देखेंगे, ये लोग इसी टाइप का काम करता है, सुसज्जित काम इसी टाइप का ही होता है। पौलुस जैसे कर रहा था, खाना पीना ठीक से नहीं है, इधर जाना उधर जाना, इन लोगों को रेस्ट नहीं है। कुछ दिन आगे हम लोग ईस्टर कंडा को कंप्लीट किया, उसी दिन रात 12 12:30 बजे जब हमारा ईस्टर कंडा कंप्लीट हो गया, वो बस फिर राउर किला उन्हीं होकर राउर किला जा रहा है। हाँ, उसी रात में हमारा पस्तरानी, अब जो भी बोलिए, वो एक साथ मिलके उसी बस में, एक छोटा बच्चा भी है, हाँ 2-3 महीना हुआ शायद, कितना कष्ट करते हैं। आप तो इसका लाइफ को देखेंगे, इसका दर्द को जो समझेंगे ना, आपको सुसमाचार का पता चला जाएगा जो यीशु का सुसमाचार क्या है, यीशु का आदेश क्या है, वो आपको क्या बोलना चाहता है। उसका हृदय से आपको हृदय जब इकट्ठा हो जाएगा ना, आपको ये जो नियम कानून जो है ना सब कुछ निकल जाएगा। आपको जो अंदर जो सोच है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि बाहर से बकर 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 मत कीजिए, इसी उसी का दिमाग मत खाइए, क्योंकि आप तो जा रहा है 10 दिन लेके भी आप जा रहा है, मैं आप हेड में है ना, आपको जो पनिशमेंट होगा वो भयानक पनिशमेंट होगा। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपका पौलुस बोल रहा है, बाइबल में वाक्य है, जो लोग शिक्षक है ना, जो लोग टीचर है ना, वो लोग को बहुत बहुत मार पड़ेगा। ता आप लोग टीचर होके खुद तो जाएंगे, इसको लेके मत जाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा काम कीजिए, सुनिए, क्योंकि वचन बोल रहा है जो सुनने से कुछ खराब नहीं होता है, क्योंकि आपका अंदर जो है वो टोटल बैठा है हुआ है। इफिसियों 2:3 আমরা সকলেই এক সময়, এটা কি? 13 মনে হয়।
फिलिपियो 2:3, फिलिपियो 2:3। देखिए आपका सोच क्या बोल रहा है। স্বার্থযুক্ত উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা ভ্রান্ত দম্ভের বশবর্তী হয়ে কিছু করো না, কিন্তু নগ্নতা সহকারে অন্যদের নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করো। क्या बोल रहे हैं? स्वार्थयुक्त उच्च उच्च आकांक्षा। आकांक्षा। आप लोग को पहले बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, आप लोग का अंदर जो सोच है वो खुद का क्या है, स्वार्थयुक्त, आपका खुद का स्वार्थ है। पहले आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं क्या? आपका आपका स्वार्थ के लिए कर रहा है। जब आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिशप है, रेवरेंड है, पास्टर है, टीचर है, बड़ा कोई ऑफिसर है, कोई खेती बखामा का बड़ा मालिक है, बिजनेसमैन है, आपका स्वार्थ है उसमें। उसमें परमेश्वर का कुछ काम नहीं है। आप जो कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है, उसमें स्वार्थ तो पर कहाँ पर है? आपको स्वार्थ है कहाँ पर? उसलिए क्या बोल रहा है? भ्रांतो কটা বলে? 2:3। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভান কিন্তু করে उच्च आकांक्षा माने ये उच्च आपको जो है, ये आपका उच्च आकांक्षा और आपका का स्वार्थ तो है। वाचन जब पढ़ेंगे थोड़ा सा वर्ड लेके पढ़िए। आपका वो सब पढ़ने का कोई मजा नहीं है। आप जो रीडिंग पढ़ देते हैं ना, आप खुद भी समझते नहीं और 5 आदमी समझते नहीं, और जो समझते नहीं उसको लेके आप एक दूसरा रास्ता में चला रहा है, दूसरा रास्ता में चला रहा है। इसमें आपको क्या होगा? आप भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। आपका सामने में जो रास्ता है, आप जो करता है ना, बहुत स्मूथ एवं बहुत बड़ा फाइन रास्ता दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, लेकिन आप सोच रहे हैं यार बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ यार, बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, हर संडे में ऐसा कर रहा हूँ, हर ये कर रहा हूँ, क्रिसमस पालन कर रहा हूँ, ईस्टर डे पालन कर रहा हूँ, काला वस्त्र व्हाइट वस्त्र पहन के आप शोक पालन कर रहा है। व्हाइट वस्त्र पहन के, काला वस्त्र पहन के, कितना कलरिंग पहनता आपको है, आपको दिमाग में अच्छा सोच है, अच्छा स्मूथ है, लेकिन वो आपको नरक में लेके चले जाएंगे। हाँ কিন্তু নগ্নতা বলো না, बोलो बोलो। কিন্তু দম্ভের বশবর্তী মানে दम्भर बस होते, आपका अंदर प्राउड है, गर्व है, अहंकार है, और आपको शैतान भी उसी टाइप का आपको देता है, आपको देता है, क्योंकि आपका अंदर भरा हुआ है ना, इसलिए भरा हुआ है, इसलिए आप सोचते नहीं। अरे ऐसा मत दिखाइए भाई, हम बहुत आप जगह एक में काम कीजिए, वो जो आप जो पूरा अंदर भरा है तो उसका अंदर नहीं घुसेगा, किंतु आप वो जो खाली करेंगे ना, खाली करके आप पानी डालेंगे। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, उसके ऊपर पानी का ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स डालेगा तो पहले से भरा है ना, पहले से कोल्ड ड्रिंक्स है, पहले से पानी डाले तो भरा है ना। आप कोल्ड ड्रिंक्स खाली कर दीजिए, पानी डालिए, उसको भर जाएगा। तो आप नम्रता सहकारे आपको सोचना है जो हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, और दूसरों को आपको साथ साथ आप भी उसके साथ साथ दूसरों को लेके जा रहे हैं और दूसरों को गलत समझा रहे हैं। जो समझाना है आपको नम्रता सहकारे आराम से बैठ के आप बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि तो आप उल्टा मत किसी का उल्टा दिमाग में मत भरिए, क्योंकि आप सोचे मैं खुद मैं सब जानती हूँ, और जो वो दूसरे लोग बोलते हैं वो कुछ नहीं जानते, वो पाप करते हैं, वो पाप कर रहा है, ऐसे मत सोचिए। दूसरे के सुजोग दीजिए वो सोचने का। किसी का कान अंदर में दिमाग मार फोड़िए, आपको नम्र के साथ उसके साहाଯ୍य कीजिए, वो जन आपका स्वर्ग राज्य शांति मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा। इसलिए एक बार क्या बोल रहा है, जे आपका अंदर जो प्राउड है, गर्व है, अहंकार है, उसको मत जाइए, आप उसके साथ बैठिए। क्योंकि मैं मेरे बेटी के साथ अभी भी उसको जानता हूँ, जानने के लिए बोलता हूँ, कि मेरे बेटी को मैं पूछता हूँ ये कैसे करना है, वो कैसे चलाना है, वहाँ पर मनु क्या करने से क्या मिलेगा, वहाँ से क्या करना है, उसको भी मैं सजेशन लेता हूँ। मेरा बेटी मेरे से कितना छोटा है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है बाहर का, लेकिन मैं उसको पूछता हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा जो बोल रहा है उसको पहले सुनिए, उसके बाद आपका दिमाग लगाइए, आपका सोच लाइए, आपका हिसाब किताब लाइए, लेकिन पहले से आप आपका हिसाब किताब, आपका दिमाग मत लाइए। इसमें आपको दूसरा रास्ता देखना हो जाएगा। कि इसलिए बोला कि
ये पहले सोचिए, हम एक छोटा शिशु भी क्या बोल रहा है, मैं सुनता हूँ, क्योंकि उसका भी ऐसा कुछ अंदर है जो हमको रास्ता दिखाएगा, जो हमको वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन मेरा बेटी मेरा बहुत बड़ा बड़ा काम को मुझे इजी कर दिया है, इजी कर दिया। जब पापा तुम ऐसे ऐसे करो, जैसा फोन का बड़े में व दूसरा कुछ ये में वो हमको पूछता हूँ, मनु ये कैसे करना है, वे इंग्लिश में ये बोल रहा है, ये क्या करना है, वो कौन सा क्या करना है भाई। हाँ, वो हमको कोई वचन हमको गलत, आज मेरा बेटी दूसरा जगह में, लेकिन ये जो गीत सुनेगा आपको वचन बोल रहा ना, वो रहता तो उसको आपको बता देगा, फटक से बता देगा, जब पापा ये सेंटेंस में वो है। लेकिन गीत सुनते बोला है वचन, जो एक स्मूथ रास्ता है जो आपको दिखाएगा, लेकिन लास्ट में इसको फिनिशिंग में कहाँ पर चला जाएगा, आपको एंड में मृत्यु दिखाई देगा, मृत्यु दिखाई देगा आपको। इस संगीत तो नहीं, दूसरा जगह है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए लेवियो का 4:27, लेवियो 4:27। যদি সমাজের কোনো, এটা তো যদি কোনো সমাজের সদস্য অনিচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে, সে সদাবে আদেশ সময়ে কোনো নির্দিষ্ট আদেশ লঙ্ঘন করে, তখন তারা তার দোষ বুঝতে পারবে। ताहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, वाक्य ईश्वर जो वचन आपको बोला है उसके जो निषिद्ध वाक्य है उसका उल्लंघन किया है, वही आपके लिए पाप है, অনিচ্ছাকৃত अनैच्छिक। लेवियो 16:21, 16:21। জীবিত ছাগ, এটা তো 21টা তো। हाँ, জীবিত ছাগের মস্তকে সে তার 2 হস্ত রাখবে এবং ইসরায়েলের সমস্ত দুষ্টতা ও বিরোধিতা স্বীকার করবে, ও তাদের সকল পাপ ছাগের মস্তকের উপর রাখা হবে। দায়িত্ব পালনের সাথে নিযুক্ত ব্যক্তি তত্ত্বাবধানে সেই ছাগলটিকে প্রান্তরে প্রেরণ করবেন। पहले हम लोग को जो सिस्टम था, लेवियो पुस्तक यदि आपको पूरा पढ़ेंगे, आप धरी मैं पाप किया हूँ, मैं तो पाप किया हूँ, पाप करने के बाद मैं एक छाग लेके आया हूँ, मेष लेके आया हूँ, और जाजक कद में समर्पण किया है, जाजक उस पर हाथ रखेंगे, वो प्रार्थना करेंगे मेरे लिए, मेरे पाप के लिए। तो मेरा पाप क्या होगा, छाग के ऊपर चला जाएगा, ट्रांसफर, मेरा जो है वो वहाँ पर ट्रांसफर होकर जाएगा। समझ गए ना। तरी आप यहाँ का लाइट का फैन का स्विच दिया है, लेकिन लाइट का वहाँ पर जाके आपको फैन चला रहा है, बार लाइट ऑन कर रहा है, समझ गए ना, क्योंकि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वो अलग जगह में चला जाता है। तो हमारा जो पाप है वो जाजक क्या करते हैं, उसका हाथ मस्तक में हाथ रख के उसको प्रार्थना करने से हमारा जो पाप उसके ऊपर चला गया, ताले वो पापी बन गया, मैं धार्मिक बन गया। पहले दिमाग में लगाइए, ताले वो जब पापी बन रहा है मेरे लिए, मैं धार्मिक बन रहा हूँ, ताले उसको मरना है, उसको मरना है। तो वो जब मरेगा मेरे लिए लहू बहेगा, और वही लहू एक हरिकट में जहाँ पर बोली होता है वहाँ पर एक लगता है और एक मिट्टी में लगता है। मिट्टी में क्यों लगता है, मिट्टी से हम प्रस्तुत हुआ हूँ, मिट्टी से हमको सृष्टि किया है, तो मिट्टी में क्या बनता है, आदमी बना हुआ, हम लोग मिट्टी हूँ, पहले दिमाग में रखिए, हम लोग मिट्टी हूँ, तो हम मर जाएंगे तो हमारा बॉडी क्या होगा। एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, धरिए मैं भी एक मिट्टी का पुतुल हूँ और यहाँ पर अलग मिट्टी का पुतुल है, ताले 2 मिट्टी का पुतुल है, मैं भी एक मिट्टी का पुतला, वो भी एक मिट्टी का पुतला। मेरे अंदर क्या है, प्रभु ने एक आत्मा दिया है, प्रभु ने फूं दिया है, इसलिए हम चला फेरा कर रहा हूँ। परमेश्वर का आशीर्वाद के अनुसार में, परमेश्वर का अनुग्रह के हिसाब में हम बात कर रहा हूँ, आपको सामने वीडियो बन रहा हूँ, आपको सामने ईश्वर का वचन बोल रहा हूँ। लेकिन वो मिट्टी का पुतले में वो जान नहीं है, लेकिन वो बात नहीं कर रहा है। जब परमेश्वर हमारे से वो आत्मा को ले लेगा, आपका योग 10:12 में बोला है, जब हमारा मानव जाति का समस्त आत्मा प्रभु का हाथ में है, तो हमारा आत्मा जब से वो रिटर्न ले लेगा, हमारा आत्मा किसके, प्रभु के पास चला जाएगा। जब प्रभु के पास चला जाएगा, मैं भी एक क्या बोलता है, जड़ पदार्थ जिसमें कोई जान नहीं है, ताला उस टाइम क्या होगा,
मुझे भी, मैं मिट्टी का पुतला, मिट्टी का इसमें जान नहीं है और वो भी एक मिट्टी का, दोनों समान हो गया, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। वो भी चल नहीं पड़ता, मैं भी चल नहीं पाऊंगा, वो भी बात नहीं करते, मैं भी बात नहीं करूँगा। लेकिन आपको आंखों में दो चीज़ दिखाई देगा, आपको दो चीज़ दिखाई देगा, क्योंकि आप जगत का है, आप जगत के ऊपर देखते हैं, आप जगत के सोचता है, आपको वो वाला आँख नहीं है, इसलिए आपको दिखेगा वो मिट्टी से मैं मांसों का, हार मांसों का हूँ, ये आपको दिखाई देगा। लेकिन हमारा आंखों में क्या देखता है, दोनों ही मिट्टी का है, वो भी मिट्टी का है, मैं भी मिट्टी, मेरे आंखों में, क्योंकि मेरा आदमी का है, आपका वो जगत का है, इसलिए आप देख रहे हैं अरे ये तो आदमी मर गया, इसको कब्र से कौन करेंगे, इसको कवर करना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा। लेकिन बात वो नहीं है, वो भी मिट्टी का है, मैं भी मिट्टी, उसको भी फेंक दीजिए, मुझे भी फेंक दीजिए, क्योंकि मेरा आत्मा ईश्वर के पास चला गया, ये इनवैलिड है, वो भी इनवैलिड है। लेकिन हमारा वो जो बोला ना, आपको जो बोला द्वितीय कोरिन्थियों 4:18 में, जब हम दृश्यों का देख, जो हमारा पास दृश्यमान है उसको हम देखता हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है, अदृश्य को देखो, जो दिखाई नहीं देखा है उसको देखो। हमारा अंदर क्या है, हम जब मर जाएंगे हमको मिट्टी, मैं भी एक जड़ पदार्थ हूँ, मेरा भी कुछ काम का नहीं है, वो आप दिखाइए और उसको दिमाग में रखिए, ये कुछ काम का नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब ईश्वर का वचन के समय ग्रहण कीजिए, अर्थात हमारा पाप उसका अंदर चला गया, जब उसका अंदर चला गया, वो मर रहा है, वो लहू भर रहा है, मैं धार्मिक बन गया। तो यीशु मरा नहीं, आप पहले आंसर दीजिए, यीशु मरा नहीं, यीशु क्रूस में लहू झड़ाया नहीं, यीशु हमारा सबका पाप वहन किया नहीं, तो हम पापी कहाँ से होगा, हम कहाँ से पापी हो गया। और ईश्वर का वचन का उल्लंघन कर रहा है, ईश्वर का आदेश का उल्लंघन कर रहा है, वो जब बोला आपको धार्मिक है तो धार्मिक है, किंतु पाप वचन के सुनने का पाप आप नहीं करेंगे, नहीं, जैसे वचन अंदर अंदर रहना चाहिए, वचन आपको अंदर घुसना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना पड़िए। जॉन 1:29, जॉन 1:29, পরের দিন যখন যিশুকে দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বললেন, ওই দেখো ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের সমস্ত পাপ দূর করেন। पहले देखिए क्या बोल रहा है, यीशु को जब आ रहा है, कौन देख रहा है, जॉन, कौन जॉन है, बपतिस्मा जॉन, बपतिस्मा कौन है मालूम है आपको, जो यीशु का हाथ रखे, जॉन कौन है बोलो, जॉन के बोलो, जोहन तो एक जाजक का बेटा है ना, हाँ कौन सा जाजक, इलियास, एलिशाबेथ और सखरियो जो जाजक था, वो सखरियो जाजक और एलिशाबेथ का विद्धो काल का एक भी परमेश्वर का एक दान है, अनुग्रह है, क्योंकि उसका उम्र नहीं था उसका बच्चा होने प्रसव करने के लिए, लेकिन वो बच्चा हुआ, उसका नाम दिया है बपतिस्मा जॉन। वो ताले जाजक परिवार का लड़का होगा तो क्या होगा, जाजक होगा ना, ब्राह्मण परिवार का लड़का होगा तो ब्राह्मण होता है, वैष्णव का होगा तो वैष्णव होता है, हर वंशों का जो है उसी से, वो भी जाजक परिवार का आदमी था, वो जाजक ही है। और वो जाजक का देखिए, लेवियों का आपको पढ़ाया 16:21, क्या बोल रहा है, जाजक आपका हाथ में रख, सही मेज के ऊपर हाथ रखेगा, आप प्रार्थना करेंगे, हमारा पाप सही मेज के ऊपर गया। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमारा जाजक वो बपतिस्मा जॉन से क्या किया, उसके ऊपर हाथ रखा, और हमारा जगत का जो पाप, क्या बोल रहा है, पहले क्या बोल रहा है, समस्त ईश्वर में सब। देखिए पहले आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमारा पाप के लिए हम एक में सबक जाजक के पास ले गया, और पूरा जगत के पाप के लिए ईश्वर एक मेषशावक का भेजा था, उसका नाम है यीशु। वहां पर देखिए यीशु आने के देखते हैं, बोल रहा है जॉन यीशु के तार दिखे एगिए आस्ते देखे, अर्थात यीशु ईश्वर का मेषशावक था, ईश्वर मेषशावक किसको भेजा है, यीशु ख्रिस्ट को भेजा है। हम जब हमारा पाप के लिए एक मेष को उत्सर्ग कर रहा हूँ, तो ईश्वर हमारा पूरे जगत के पाप के लिए, टोटल जगत आप माने और ना माने, विश्वास करे और ना करे, लेकिन वचन सत्य है, वचन सत्य है, आपको एक्सेप्ट करना होगा। जो यीशु हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा हुआ है, हमारे लिए क्रूस पे मरा हुआ है, हमारे लिए क्रूस पे लहू बहाया है, एवं वो बोला फिनिश्ड, खत्म, समाप्त।
हमको क्या एक्सेप्ट नहीं कर पाता। हम लोग को कुछ करना है, हमको हर संडे जाना है, बैठना है, प्रार्थना करना है, प्रथम प्रार्थना, द्वितीय प्रार्थना, शेष प्रार्थना, कितना प्रार्थना है हम लोगों को। हाँ, मैं मना नहीं कर रहा, कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन वचन को एक्सेप्ट कीजिए। वचन को एक्सेप्ट नहीं करने से आप लोग को कुछ नहीं हो पाएगा। अब आपको ज्ञानी मत समझिए, आपको पहले ये पढ़ा फिलिप के 3:2, जे हम लोग को हर के साथ बैठिए, बात कीजिए, सुनिए। आपका बहुत जैसा नेगेटिव में देखा था, मैं बोला मैं 4 महीना हो रहा है इसके साथ अटेंड हुआ है, लेकिन मैं बहुत नेगेटिव देखा था, बहुत मार्केटिंग हुआ था, लेकिन आज 4-5 महीने मैंने जो पॉजिटिव देख रहा हूँ ना, और दिन के दिन और भी पॉजिटिव होगा, और भी बढ़ेगा, और भी आएगा, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह है, ईश्वर का चैलेंज है। आप लोग को मैं भी बोल रहा हूँ, ईश्वर के साथ हम लोग हैं और ईश्वर भी हमारे साथ है। वो मंडली के हेल्प कर रहा है और भी हेल्प करेगा। आप देखिए ये सुसमाचार धीरे धीरे, क्योंकि सत्य है, आप जो कर रहे हैं वो मिथ्या है, मैं सुसमाचार है, इसको आप एक्सेप्ट करना है। हाँ, यीशु हमारे लिए मरा हुआ है, हमारा काम क्या है, उसको वचन का ग्रहण करना, उसको विश्वास करना। और आपको इससे पहले पढ़ा है क्या, इफिसियंस 2:8 में, जो हमारा वहाँ पर कोई कर्म नहीं है, हमारा कोई काम नहीं है, हम उसको विश्वास करना और उसको एक्सेप्ट करना, उसी के ही हमको अनुग्रह मिलेगा। हम विश्वास ना करके हम यदि कर्म करेंगे, हमको अनुग्रह नहीं मिलेगा। हाँ, आप सोचेंगे अरे वो प्रार्थना करता है इससे तो मिराकल हो जाता है, वो भी एक आपको है, बड़ा बड़ा काम होता है, कैंसर सड़ गया, दूसरा कोई रोग सड़ गया, किडनी का पत्थर सड़ गया, बहुत कुछ आपको है, होता है, क्यों नहीं होगा। आपको द्वितीय थिस्सलुनीकि 2:4 और 9 पढ़ लेंगे तो वहां पर आपका आंसर मिल जाएगा, जो कौन कर रहा है। मैथ्यू 3:15, मैथ्यू 3:15। तब आप समझ गए ना, ईश्वर का मेषक हो, ईश्वर हमारा जगत के पाप को उठा के लिए वो एक मेषक भेजा था जिसका नाम है जीसस ख्रिस्ट। ताले हमारा पास किसके पास है, हमारा पाप ख्रिस्ट के पास है, हमारा पास कोई पाप नहीं है, हम धार्मिक हूँ। क्योंकि हमारे जो मेषक यदि मर सकता है, हम धार्मिक बन सकता है, तो हमारे लिए ख्रिस्ट मरा है, हम भी पाप से उद्धार पाया हूँ, धार्मिक हूँ। যিশু উত্তরে যিশু বললেন, এখন সেই রকম হোক, সমস্ত ধার্মিকতা পূরণের জন্য আমাদের এরকম করা উপযুক্ত। ना, इसके पहले मैं बोल देता हूँ, यीशु जब जर्दन नदी में आया था बपतिस्मा जॉन के पास, आपका बपतिस्मा लेने के लिए, तो जॉन बोला था जे मैं आपको दे नहीं पाएंगे, लेकिन आप मुझे बपतिस्मा दीजिए। क्योंकि जॉन का पक्का पता था जे जो आया है ये ईश्वर का पुत्र है। वो साक्षी भी दिया है, वो करेंगे तो आपको बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जॉन साक्ष्य दिया है यीशु के बारे में, जो हमारा बाद में जो आएगा उसका हम जूता खुलने की योग्य नहीं हूँ। समझ गए ना आपने। ताले यीशु जो आया था, चाहे इसलिए बोला यीशु को बपतिस्मा देने के, लेकिन यीशु क्या बोला, पढ़ो। এখন এইরকম হোক, সমস্ত ধার্মিকতা পূরণের জন্য। धार्मिकता, यीशु जो जो करना है खत्म करके गया है, कुछ बात नहीं रखा है। बात रखने तो ताले कुछ पे नहीं बोलता, जे फिनिश्ड, सब कुछ समाप्त होला, सब कुछ कोनोटा बाकी नहीं। अपना जितना विधान है, जितना नियम का, जितना रूल्स है, सब कुछ कंप्लीट किया। आपको फास्टिंग से स्टार्ट करके मिराकल से सब कुछ विधान का। बोला धार्मिकता क्या है, ধার্মিকতার পূরণের জন্য আমরা এইরকম করা উপযুক্ত। যখন যোহন সম্মত হলেন, তখন যোহন, दैट इज द रूल्स। क्योंकि वो जाजक था, जाजक का काम क्या है, बपतिस्मा देना, एवं हमारा जगत के जो पाप है वो मेषशावक के ऊपर ट्रांसफर करना, मेषशावक के ऊपर ट्रांसफर करना। ये सिस्टम था उस टाइम का, क्योंकि वो विधान का लॉ था। चाचा ने जिससे बोला क्या, विधान कंप्लीट हुआ, जो इतना लॉ था वो लॉ को कंप्लीट कर दिया, इसलिए बोला क्या, विधान कंप्लीट हुआ। इसलिए जाजक के द्वारा हमारा जगत का समस्त पाप उसके ऊपर ट्रांसफर हुआ। आपको जॉन का 1:29 में जो बोला है, समझ गए आपने। यहाँ पर क्या बोला है, जे जिस सिस्टम में चल रहा है, तब जाजक बपतिस्मा देंगे, जाजक वो पाप को ट्रांसफर करेंगे,
ट्रांसफर करेंगे और वो बपतिस्मा जॉन, उसका नाम था क्या, बपतिस्मा देंगे। पहले वो याजक का काम किया, हमारा जगत का पाप उसको ट्रांसफर किया, उसके बाद वो बपतिस्मा दिया। रोमियो 3:23 आज दूसरे वाक्य आपको दिखा रहा है, रोमियो 3:23 और 24। কারণ সকলের পাপ কারণ সকলের পাপ করেছেন এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছে। এটা তো 23 তো গৌরবহীন, আর তারা বিনামূল্যে তাই বিনামূল্যে 23টাই বলো তো। কারণ সকলেই পাপ করেছেন এবং ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছেন। তাহলে आप यदि बोलेंगे मैं पापी नहीं हूँ, पापी था, मैं माना नहीं कर, पापी था, वो भी एक वचन है। जब हम लोग पापी थकने के टाइम में यीशु हमारे लिए मरा हुआ है, हमारे एक क्रूस पे चढ़ा हुआ है, हमको धार्मिक बनाया हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है आप देखिए, ये সকলেই পাপ করেছেন। इसलिए ईश्वर का जो गौरव था, ईश्वर का जो महिमा था, वो क्या हुआ, मिलान हो गया। 26 का क्या बोल रहा है, তারা বিনামূল্যে তাই তাই অনুগ্রহ খ্রিস্ট যিশুতে প্রাপ্ত মুক্তির দ্বারা নির্দোষ গণিত হয়। क्या बोल रहा है, बिना मूल्य। आपको पहले बोला था जो हम परिश्रम करके मिलता है उसको क्या बोल रहा है, हमारा पारिश्रमिक है, हमारा पावना है, हमारा हक है उसमें। लेकिन ये क्या है, बिना मूल्य। आपको बोला अनुग्रह है, जो बिना मूल्य हमको मिलता है, जो बिना काम से हमको पाता है, उसको हमको अनुग्रह बोलता हूँ। ग्रेस जिसको बोलता है, क्योंकि पहले हम लोग जब पढ़ाई करता था उस टाइम सुना था हम लोग को जो ग्रेस नंबर होता है। ग्रेस नंबर मतलब क्या है, हमको पास करने के लिए 35 नंबर चाहिए, लेकिन हमको 30 मिला है। 5 नहीं मिलने से, 5 नंबर्स नहीं मिलने से हम लोग फेल कर जाएंगे, लेकिन 5 क्या हुआ, हमको ग्रेस दिया, जो पास कर दिया। 35 5 नंबर ग्रेस दिया। ये हमको क्या हुआ, ये जो 5 नंबर हमको जो एक्स्ट्रा मिला है वो हमको बिना काम से मिला है, बिना काम से। इंग्लिश में क्या बोला, ग्रेस, अनुग्रह। उसका अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, वो इसलिए हमको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया। यहाँ पर यीशु ख्रिस्ट का हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ, हमको अनुग्रह किया है, हुआ नहीं, वो क्रिया है। पहले वर्ड को समझिए, आपको बार बार बोल रहा हूँ, वर्ड को समझिए। हम लोग वर्ड को समझते नहीं और हर बार चढ़ के इतिहास का तरह रीडिंग पढ़ जाता है। रीडिंग पढ़ने से कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं होगा। और अकेला सब कुछ काम अकेला तरह होता नहीं। आप लोग जो कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, अकेला सब कुछ करना है हमको, हम अकेला पूरा हीरो बन जाता है। वही लूसीफर का काम है, क्योंकि लूसीफर का वही काम था। आप जो देखेंगे वचन भी है जो जिशाया में बोला है कि हम सब कुछ को ऊपर खड़ा होंगे, सब कुछ जिशाया में बोला है। वो बोलने से बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आप सब कुछ को अकेला करने के लिए चिंता मत कीजिए, सबको बांट दीजिए, सबको बांट दीजिए। क्योंकि सहभागिता का मतलब क्या है, सहभागिता माने सब मिल के काम करना। भागी माने भाग, डिवाइडेड, सबको भाग करके काम कीजिए। आप अकेला मत खाने के लिए चेष्टा कीजिए। अकेला कौन खाता है, दियाबल खाता है, शैतान खाता है। वो अकेला सब कुछ करना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर ऊपर जाने के लिए हर टाइम ट्राई कर रहा है। जहाँ हम परमेश्वर के समतुल्य होगा, परमेश्वर साथ रहेंगे, परमेश्वर के समतुल्य होगा, वैसे बार बार उसका इच्छा भी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जे तारा बिना मूल्य तारी अनुग्रह খ্রিস্ট যিশুতে প্রাপ্ত মুক্তি দ্বারা নির্দেশ গণিত হয়। বাক্য কি বলছে আপনাকে, বাক্য क्या बोल रहा है आपको, যে बिना मूल्य খ্রিস্ট যিশুতে प्राप्त मुक्ति। তাহলে यीशु ख्रिस्ट हमको मुक्ति दिया ना नहीं दिया, जब दिया है তাহলে हम लोग निर्देश गणित हुआ ना नहीं हुआ, हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, गणित है मैंने ऑटोमेटिक कंप्लीट हुआ है। निर्देश गणित है अर्थात ईश्वर ख्रिस्ट जिसु से प्राप्त मुक्ति। तो हम लोग को क्या यीशु ख्रिस्ट खुद मुक्त किया है, हमको निर्देश बोले घोषित किया है। हम लोग क्यों सोचेंगे हम लोग पापी हूँ,
वचन जो बोला उसके एक्सेप्ट कीजिए ना। इब्रियो 10:10। সেই ইচ্ছের কারণে যীশু খ্রিস্টের দেহ চিরকালের জন্য একবারই উৎসর্গিত করা হয়েছে বলে আমরা পবিত্রকৃত হইয়াছি। यहाँ पर क्या बोल रहा है? যে সেই সেই ইচ্ছার ইচ্ছার কারণে। কারণে ये पहले ईश्वर का इच्छा था जब कृष्ण को भेजेंगे और कृष्ण जब मृत्युवरण करेंगे उसी का इच्छा में, और जो पहले आपको पढ़ाया था जब जगत का समस्त पाप जिसके ऊपर बरताया हुआ, ठीक है ना, इसलिए बोला क्या जे देव चिरकाल के लिए। देखिए 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए नहीं, पहले पढ़ो হুম? फिर पढ़ो। কোনটা? ওটা সেই ইচ্ছের কারণে যীশু খ্রিস্টের দেহ চিরকালের জন্য একবারই উৎসর্গিত করা হয়েছে বলে আমরা পবিত্রকৃত হইয়াছি। वे आछी। হইয়াছি। हाँ बोलो बोलो, धक्का करो डाले। यीशु ख्रिस्टेर देह मैंने हम लोग को जो पाप किया है से एक बार के लिए यीशु ख्रिस्टेर देह उत्सर्ग किया है। एक बार ही उत्सर्गित करा মানে करा হইয়াছে। जो हम लोग को जो पाप किया है इसलिए वो तो एक बार ही देह दान किया ना, इसलिए हम लोग को सोचना चाहिए जो हमको लिए कोई एक जन हम लोग को लिए पाप से लेके गया है। से मर्मन भावे हम लोग को सोचना है जो उसका कितना अत्याचार किया है, जो हम लोग को देह दान किया है तो हम लोग कितना प्यार किया है, तो हम लोग सोचना चाहिए ना। जो हमारा पिता माता इतना कष्ट करेगा क्या? कोई नहीं करेगा। जो पिता माता बोलते हैं तुम पाप किया, तुम हम पहले से जानते हो जो क्या, जब हमारे माँ बाप बोलते हैं तुम पाप किया है, जो ये पाप करते हैं उसको भोगना है। तो आप सोचिए हम लोग पाप किया और एक जन को ले लिया है, जो क्या होता है स्वर्गस्थ पिता है, जो पिता हम लोग को पाप एक बार इतना कष्ट हम लोग को देखते तो रोना लगते हैं। जो हमारा अपना जगदीश पिता माता इतना सह सकेगा नहीं पाएगा। देखो स्वर्गस्थ पिता जो जितना प्यार करते हैं वही माँ बाबा जगदीश बाबा माँ बाबा इतना प्यार नहीं करते हैं। जो हमको लिए एक बार से जीवन दान दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, किंतु जगदीश माँ बाबा नहीं दे पाएंगे। किंतु आदमी जो है ना, आदमी जो ईश्वर है ना, जो मेरा पिता है, मेरा स्वामी है, मेरा सब कुछ है। जगदीश हम लोग जितना दिन है रक्तमन से है उतना दिन तो हम लोग को रहना पड़ेगा, किंतु जो हमारा आत्मा जो हमारे स्वर्गस्थ पिता के पास जाएंगे तब हमको जवाब देना पड़ेगा तुम मेरे के लिए क्या किया है। मेरा के लिए तुम क्या किया है, तब सबके सामने आप सोचेंगे तो हाँ वो छोटा है ये बड़ा है ये नीचू जाते है ओ उसका, किंतु आप जो बड़ा छोटा ब्राह्मण पास्टर जो है सबके लिए एक जगह खड़ा होना पड़ेगा। एक जगह खड़ा होने के आपको उससे पूछा उसका क्यों छोटा सोचा, उसका क्यों तुम हुमकी दिया है, तुम उसका क्यों ये बोला है, तब उस सोचने को उत्तर देना है। तब पिता क्या बोलेगा, आपके लिए तो मैं जीवन दान दिया हूँ ना। मेरा पिता बोलेगा ना आपको स्वामी है। जब वो जो मोती 26 का ना बोलते हैं ना, जो 5 नारी है ना 25 का मोती 25 का जो 10 नारी है ना, एक जन आपको पूरा तेल भर के सारा रात जागा था और एक पूरा खाली था। जो खाली है उसका तो बकर करेगा और जो भरा है कभी बोलते नहीं है। तो आप इससे तब सोचेगा तुम मेरे के लिए क्या किया है, मैं तो जीवन दान दिया हूँ, आपको लिए तो मैं बहुत ये किया है, कि मेरे के लिए आप क्या किया है उसके लिए आपको सोचना चाहिए। जो हम पहले से आप आदमी से सोचिए, जागतिक से मत सोचिए जो मेरा असली पिता माता क्या किया नहीं, किंतु आप आदमी बाबा सोचिए
जो पिछले पिता हम लोग को जो इतना कष्ट सोया है, हम लोग को पाप के लिए हम लोग को इतना ये किया है, तो इसलिए आपको सोचना चाहिए। हम लोग को आप दिमाग से सोचिए और दिमाग के सोचना चाहिए जो हम लोग को पिता ने जो किया है से एक बार आपको रक्त दिया है, हमको उसके लिए रक्त देना है। आप ऐसे ही कीजिए। जिसके वाक्य को क्या बोल रहे हैं, वाक्यों से आपको चलना है। आपको उसका वचन सब चलिए, सब ठीक वचन आपका अंदर लगना है। मैं कहते एक्चुअली मेरे वचन अंदर नहीं रहते हैं, मैं इतना डिटेल से आपको बोल नहीं पाती हूँ, किंतु जितना मैं ये 4 महीने जितना सीखा पाया हूँ, थोड़ा सा जानती हूँ, ज़्यादा नहीं, किंतु थोड़ा थोड़ा याद है। किंतु हम जितना बात को मैं इतना खोल के बोल नहीं पाएंगे कि मेरा हस्बैंड जो बोल रहा है उसको आप अंदर में रखिए, यही मेरा को बोलना है। ठीक है। तो आपका रोमियो 3:26 में क्या बोल रहा है? 3:24 का तो जे यही तो बतेगा। हाँ, रोमियो का 23:26 में बोल रहा है। रोमियो हाँ हाँ, क्या बोल रहा है रोमियो? आपका 3:26 क्या बोल रहा है? बिना मूल्य, आपको यहाँ पर कोई परिश्रम नहीं है, आपको अनुग्रह मिला है, तो आपको जो अनुग्रह मिलकर आपको एक्सेप्ट कीजिए। आप खुद के काम कर रहा है। और यहाँ पर क्या बोल रहा था, हम लोग क्या पढ़ रहा था, इब्रियो 10:10, अर्थात यीशु कृष्ण का देह एक बार के लिए, यीशु कृष्ण देह एक बार के लिए, चिरकाल के लिए, हर टाइम के कंटिन्यू, माने चिरकाल माने कंटिन्यू के लिए आपको उत्सर्ग किया है। जैसा अरे इब्रियो 10:10, अर्थात चिरकाल के लिए आपको उत्सर्ग किया है। और उत्सर्ग जब किया है, हाँ, वो हमारे लिए क्या हुआ, देखिए वचन अलग बार आपको पढ़ा देता हूँ। से इच्छा एक बार उत्सर्ग किया है, हम लोग पवित्र तो हुए आछी। वचन क्या बोले? आछी, कंटिन्यूअस। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर कुछ कम कंप्लीट हो चुका है। क्या बोल रहा है? जब हम लोग पवित्र तो हुए आछी, जब आछी माने है, हो गया है, तब आपको कुछ करना है क्या? वचन का आप क्यों नहीं ग्रहण कर रहा है? क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? हम लोग पवित्र तो हुआ है, हम लोग का धार्मिक बना हुआ है, हम लोग का कंप्लीट हो चुका है हमारा काम। हम क्यों ऐसे उसा करेंगे? जो उसका जो वचन है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसका ग्रहण कीजिए। एक ही काम है सुसमाचार प्रचार का। सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना है। वही यीशु का वचन है, वही यीशु का आदेश है, वही आदेश को हम लोग को एक्सेप्ट करना है। जो आपको बोल रहा था ना, जो हमारा जब खत्म हो गया 12 साढ़े 12 बजे जब बस छोड़ा, पस्तरानी दोनों मिलकर खाना हुआ कि नहीं हुआ, शायद मेरा खाया भी नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पस्तरानी को देखा हूँ, वो रात में 1-2 किलोमीटर नहीं है, 7-8 किलोमीटर दूर है, मैंने हमारा सभा घर से उसका घर, और रात में अकेला जाके सब कुछ लोडिंग फोडिंग करके फिर आया। आज छोटा एक बच्चा है, उसको लेके बस पे चढ़ गया। अब कर पाएंगे? अब कर पाएंगे? अच्छा 2 साल का था, 2 महीना का कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग को वचन नहीं है आपका अंदर, क्योंकि लेकिन उसके अंदर वचन है। जिसके अंदर वचन है वो जाएगा। ऐसा बहुत कुछ आपको रेफरेंस है। हाँ, क्योंकि कलिसियो में बोला है 2:13 में ना, कहाँ पे जे हमारा अंदर प्रचुर परिमाण ईश्वर का वचन रहना चाहिए। यीशु बोला है जिसका अंदर वचन है वो हमारा शिष्य है, वो हमारा स्टूडेंट है, वो हमारा छात्र है। आपको वचन कहाँ पर है? आप लोग खुद को एडुकेटेड, खुद को सोचता है ना, लेकिन हमारा पास्टर वो सबको सुनता भी है, सबको सुनता भी है, क्या क्या बोल रहा है, वो फटाफट नहीं करता है। क्योंकि आपको जो फिलिपियो 3:2 बोला था, आपको सबको सुनिए, पहले सुनिए। आपको एक्सेप्ट करना नहीं करना वो बात का बात है, उसमें आपको दिमाग लग रहा है। जैसे हम मार्केट में जाता हूँ, सबको देखता हूँ, सबको जगह वेरीफाई करता हूँ, यहाँ पर कहाँ है, वो पर कहाँ है, वो पर कहाँ है, उसके बाद मैं एक्सेप्ट करता हूँ, चाहे हाँ यहाँ से खरीदना है,
यहाँ से ये लेना है, उसको लेना है। मेरा छोटा एक बच्चा है, उसके पास भी हम सजेशन लेता हूँ कि भाई इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। छोटा होने से उसका दिमाग में भी कुछ ऐसा कुछ बात है जो आपके पास नहीं है, आप एक्सेप्ट कीजिए, इसको डिनाई मत कीजिए। क्योंकि मैं 4-5 महीने में देखा ना, बहुत नेगेटिव आदमी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि उसका अंदर एक्सेप्ट करने के लिए हृदय दिया है प्रभु, अनुग्रह किया है। आप लोग को अनुग्रह नहीं करेगा प्रभु, क्योंकि आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैथ्यू लूक का 24:45, 24:45 में बोल रहा है क्या, यीशु जब उसको हृदय को उन्मेलित तो किया तब वो लोग उसको एक्सेप्ट किया, उसको पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उसको हृदय दिया है जिसे एक्सेप्ट करने के, तो आप लोग नहीं मांगने से कहाँ से देगा। 10:14 বিবৃয়। কারণ তার একবার মাত্র বলিদানের জন্য তাদের পবিত্রকৃত করা হইয়াছে, তাদের তিনি চিরকালের জন্য পূর্ণতা দান করেন। তাহলে यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए 10:14। তার একবার মাত্র একবার। আর আমরা যদি বছর বছর যদি এই নিয়ম কানুন পালন করে যাই, তাহলে বছর বছর যিশুকে মরতে হতো। কিন্তু আর भी वाक्य एक वचन है जो यीशु को हर साल मरना पड़ता था। वो भी वचन आपका हमारा बाइबल में है, जहाँ हम यीशु के हम लोग मरेंगे, वो बहु बार कष्ट भोग करेंगे। नहीं, वो एक बार के लिए ऐसा काम खत्म कर दिया है। पढ़ो। এটাই কি একমাত্র বলিদানের জন্য তার পবিত্রকৃত করা হয়েছে। एक बार बोली, एक बार, दूसरा बार नहीं, बार नहीं, एक बार ही। তাদের তিনি চিরকালের জন্য পূর্ণতা দান করেন। তাহলে एक दिन के लिए ना, 2 दिन के लिए, चिरकाल के लिए, कंटिन्यूअस एटर्नल लाइफ आपको दिया है। आप उसको ग्रहण कीजिए और आराम से रहिए। जॉन 19:13। लास्ट जॉन 19:13। একথা শুনে পিলাত যিশুকে বাইরে নিয়ে এলেন। এই বইটা তো 13 তো 19:30। 19:30। পানীয় গ্রহণ করে যিশু বললেন, সমাপ্ত হলো। हाँ तो देखिए समाप्त तो हुआ कि नहीं। पानीय ग्रहण करने के बाद यीशु बोला समाप्त हुआ, फिनिश्ड। यही কথা বলে তিনি তার মাথাকে আত্মসমর্পণ করলেন। তাহলে फिनिश्ड हुआ ना नहीं हुआ। जब फिनिश्ड हुआ आप क्यों उसको स्टार्ट कर रहे हैं भाई, मुझे तो समझ नहीं है। जो कर चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, उसको फिर से आप लोग हर साल क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। जो बोला है सुसमाचार प्रचार करने के लिए इतना ये है ना, तो चलिए आइए हमारे साथ बैठिए, सुसमाचार कितना प्रचार करेंगे। आइए हमारे साथ बैठिए, जानिए सत्य क्या है। अपना दिमाग लगाता है हर टाइम में। और पहले यहाँ पर फिनिश्ड हुआ है। फिर आप इसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ यीशु हमारे लिए सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, लेकिन हम लोग उसको स्टार्ट करना नहीं है। वो जो बोला है उसको एक्सेप्ट करना और आगे जाना है। और हमको और सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम लोग को सब मिल के इकट्ठा होके हमको यीशु के वाक्य को प्रचार करना है। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा काम है। आइए हम लोग प्रार्थना करता हूँ। ধন্যবাদ আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, তোমার পবিত্র মহানামে ধন্যবাদ করি রাজা। ধন্যবাদ করি প্রভু, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তুমি আমাদের সাহায্য করলে, এই বেলা পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে আসলে এবং এই ট্রাফিক বলার জন্য তুমি আমাকে বচন দিলে, বাক্যকে আমার মুখকে ব্যবহার করলে, সেটিকে ব্যবহার করলে তোমাকে ধন্যবাদ করি প্রভু। যে আমার কোনো যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও, কোনো উৎকৃষ্ট না থাকা সত্ত্বেও তুমি আমাকে সাহায্য করেছো, তুমি আমাকে হেল্প করেছো, আমার মুখে বাক্য দিয়েছো, আমাকে বচন দিয়েছো। কারণ আমার কোনো যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তোমাকে ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রত্যেকটা বচন দেওয়ার জন্য, প্রত্যেকটা কাজে সাহায্য করার জন্য, প্রত্যেকটা কাজে হেল্প করার জন্য তোমাকে গৌরব প্রশংসা মহিমা তোমাকে দিই।
কেন আমার মধ্যে সেই যোগ্যতা নেই, আমার মধ্যে সেই উৎকৃষ্টতা নেই, কিন্তু তবু তোমার রাজ্যের কাজে আমাকে আমার পরিবারকে ব্যবহার করছো প্রভু। তোমাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে একটা মণ্ডলীর সাথে জুড়েছো, যে মণ্ডলী আমাকে তার পরিবার মানে আমাদের পরিবারকে সে ইউটিলাইজ করছে তোমার সেই দাসের মাধ্যম দিয়ে। তোমাকে ধন্যবাদ করি রাজা প্রভু যীশু খ্রিস্ট, তোমাকে গৌরব করি, প্রশংসা করি প্রভু তোমার। তাই ধন্যবাদ করি পিতা যে প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তুমি আমাদের আচর ছিল থাকবে, এবং তোমার এই বচনকে, তোমার এই বাক্যকে আমাদের হৃদয় দিও, যাতে আমরা বচনকে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ভরে রাখতে পারি, আঙুলের মধ্যে ব্যবহার করতে পারি, এবং চোখের মনির মধ্যে তাকে সুরক্ষা রাখতে পারি। তুমি অনুগ্রহ করেছো, তোমাকে ধন্যবাদ করি প্রভু এই অনুষ্ঠানকে চালনা করার জন্য। তাই প্রভু এই বচনকে তোমাদের সমর্পিত করছি, তুমি তাকে আশীর্বাদ করো, অনুগ্রহ করো, এবং সবাই যেন শোনে, বাক্যকে গ্রহণ করতে পারে, নিজেদের বুদ্ধি, নিজেদের জ্ঞান, নিজেদের কর্তব্যকে ত্যাগ করে তোমার ইচ্ছা, তোমার যোজনা, তোমার পরিকল্পনা, তোমার বাক্যকে গ্রহণ করতে পারে সেই হৃদয় তুমি তাদের দাও, সেই হৃদয়তে তুমি উন্মানিত করো, এবং আগামী দিনে মণ্ডলী যেন আমরা আরো আশ্চর্য কাজ দেখতে পাই প্রভু। তুমি আমাদের সহবর্তী হও, আমাদেরকে সাহায্য করো, অনুগ্রহ করো প্রভু। আর এই ভিডিওকে প্রত্যেকটা ইউটিউবের মাধ্যমে দিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে প্রভু তাদেরকে পরিত্রাণ পেতে তুমি সাহায্য করো ও তাদেরকে সাহায্য করো। এই সমস্ত প্রার্থনা তোমাকে সমর্পিত করে তোমার পরিচিত চাইছি। আমেন। নমস্কার।